लास्ट क्लास हम लोग का कॉपी के अंदर लिखा हुआ था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज क्विकली। विल बी स्टार्टिंग द क्लास विद राइटिंग assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। कल मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया, तो लेट्स पिक इट अप फ्रॉम हियर। assumptions of law of DMU. assumptions of the law से शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने कल का क्लास किया है अच्छे से तो आपको याद होगा कि मैंने assumptions पढ़ाया था। Can anyone tell me कोई भी एक assumption to begin with the class? आप लोग से पूछा मैंने। उसके पहले हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ रहे हैं। तो assumptions of law of DMU किस अप्रोच के लिए, कार्डिनल या ऑर्डिनल? कार्डिनल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है that your utility can be measured in terms of numbers and that numbers is then measured in terms of money। हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं पहला assumption monetary measurement of utility। तो गाइस ये इस लॉ का assumption है कि आपका जो यूटिलिटी है वो मॉनिटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो लॉ वैलिड नहीं है मेरा भाई। सबसे पहला assumption है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर पहला assumption है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हो गया? तो पहला assumption है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हमें ये बताता है दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल in terms of money। लिखने का है गाइस, हम लिखवाना है आज। मैंने पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी है। मैंने आज का क्लास में रिवीजन से शुरू नहीं किया, मैंने पढ़ाने से सीधा शुरू किया। रिवीजन हम लोग करेंगे लास्ट में आज। Monetary measurement of utility is the first assumption. What is the first assumption? Monetary measurement of utility। Monetary measurement of utility ये बोलते हैं utility is measurable in terms of money। Utility is measurable in terms of money। हो गया पहला? Can I move forward guys? Utility is measurable in terms of money। रिप्लाई करोगे तो आगे बढ़ेंगे गाइस। सेकंड, कंजम्पशन ऑफ reasonable quantity। Consumption of reasonable quantity। Consumption of reasonable quantity। पहला assumption है monetary measurement of utility। इसका मतलब है utility is measurable in terms of money। सेकेंड है अपना कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी के अंदर इट इज एज्यूम दैट
it is assumed that a reasonable quantity is assumed that a reasonable quantity of the commodity is consumed. It is assumed that the reasonable quantity of the commodity is consumed. It is assumed that a reasonable quantity of the commodity is consumed. It is assumed that a reasonable quantity of the commodity is consumed. Point number C. Point number C. Continuous consumption. पहला assumption था मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज का मतलब है यूटिलिटीज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. सेकंड assumption है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसका रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए. तीसरा, आप जो कंटिन्यूअसली उसको कंज्यूम करना चाहिए. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? इट इज assumed that consumption is a continuous process. It is assumed that consumption is a continuous process. It is assumed that consumption is a continuous process. मतलब मैं इसके थ्रू ये बोलना चाह रहा हूं कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसमें गैप नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट आइसक्रीम मॉर्निंग खाया, अब सेकंड आइसक्रीम इवनिंग नहीं खा सकते हो. द सेकंड आइसक्रीम हैज टू बी बैक टू बैक. आई होप ये असम्पशंस याद है आप लोग को. क्या था लॉ ऑफ डीएमयू? आप लोग से पूछ रहे हैं. As we continuously consume, the satisfaction that we derive from each unit goes on. क्लियर है यहां तक? याद है आप लोग को? पॉइंट नंबर डी. Can I move forward, guys? Rational consumer. Rational consumer. The consumer who is consuming the commodity, consumer who is consuming the commodity is assumed to be rational. The consumer who is consuming the commodity is assumed to be rational. Dash compares the utility of different commodities, compares the utility of different commodities. The consumer who is consuming the commodity is assumed to be rational. Dash compares the utility of different commodities and aims at maximizing total satisfaction. And aims at maximizing total satisfaction. जो कंज्यूमर वो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है रैशनल है, जो डिफरेंट कमोडिटीज का यूटिलिटी को कंपेयर कर सकता है एंड वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले. क्या आता क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर ई. very important point. MU of money. I hope you understand what is MU of a money, guys. 1 रुपया से जो satisfaction आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? MU of a money.
रिमेन्स, क्या रहना पड़ेगा इसको अगर, परफेक्ट, MU ऑफ अ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. As consumer spends money on the commodity. इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ना गाइस, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ना. MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, इसके बिना आप आगे का पढ़ाई नहीं कर सकते. As consumer spends money on the commodity, as consumer spends money on the commodity. तो मेरा बात समझने की कोशिश करना ना, मैंने कमोडिटी खरीदा, मैंने अपना रुपया खर्चा कर दिया, तो डोंट यू थिंक मेरे पास जितना मनी था वो कम हो गया. और जब कोई चीज कम हो जाता है ना, वो हम लोग के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जितना नजदीक एग्जाम आएगा ना, उतना सीरियसली तुम हमको लेगा. फैक्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, अभी बहुत टाइम, तो तुम भी हमको सीरियसली नहीं ले रहे, हम भी तुमको सीरियसली नहीं ले रहे. एग्जाम जितना जितना पास आ गया उतना टाइम कम हो गया, अभी पता है टाइम कम है, तो हम तुमको सीरियसली लेगा, तुम भी हमको सीरियसली लेगा. ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो अभी तुम क्या किया, कमोडिटी में कुछ रुपया खर्चा कर चुके हो ऑलरेडी, तो तुम्हारा जो अमाउंट ऑफ मनी विच इज अवेलेबल विथ यू, वो तो कम हो गया ना मेरा भाई. और जैसे तुम्हारा अमाउंट ऑफ मनी तुम्हारे पास कम होता था ना, मनी से तुम्हारा प्यार ज्यादा बढ़ते जाता है. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो मतलब इन शॉर्ट, आपका MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट तो बेकार का बात है, क्योंकि जब तुम्हारा मनी कम होगा ना, तुमको जो सेटिस्फेक्शन उस कम मनी से आएगा ज्यादा होगा, एज कम्पेयर तो तुम्हारे पास ज्यादा है कोई चीज. हम लोग हिंदी डायलॉग नहीं मारते, हम तुम्हारे साथ, तुम मेरा कदर नहीं कर, हम जाएगा तो देखना तुम कदर करेगा. अरे तुम समझ रहे क्या? तो मनी अभी है तो पूरा अबंडेंस में है, तो तुम मेरा कदर नहीं कर रहे. जैसे ही पैसा कम होने लग जाएगा, तुम मेरा पूरा कदर करेगा, पूरा इज्जत देगा फुल टू, कि भाई अभी पैसा कम हो गया, अभी इज्जत देने का पैसे. क्या बोला, समझ में आया? तो अगर कंज्यूमर अपना मनी स्पेंड करते जा रहा है, तो उसका मनी कम होते जा रहा है मेरा भाई, तो उसका कदर मनी के लिए, उसका जो सेटिस्फैक्शन है मनी से, वो बढ़ते जा रहे हैं. क्लियर है? पर ये बोलते हैं ऐसा नहीं होने का. हर बार MU ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब अगर हर बार 1 रुपया 1 यूटिल है, तो आपका मनी बढ़े आपका मनी गिरे, हर बार 1 रुपी विल बी इक्वल टू 1 यूटिल. नहीं तो ये लॉ प्रूव नहीं हो सकता मेरा भाई. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. क्या आपको पॉइंट समझ में आया है? मैं वापस से बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में आपका इनकम बढ़ते जा रहा है, आपका 1 रुपया का कदर गिरते जाएगा. अभी तुम्हारा रुपया कम होते जाएगा, तुमको 1 रुपया इंपॉर्टेंट होते जाएगा. मंथ के एंड में 10 रुपया भी इंपॉर्टेंट है, 5 रुपया भी इंपॉर्टेंट है. अभी जब तुम्हारे वॉलेट में पैसा नहीं है, तुम्हारे वॉलेट के अंदर जितना सिक्का है ना, उसका अलग ही इंपॉर्टेंस है. करेक्ट? अभी तुम्हारे पास नोट्स है, तो तुमको सिक्का का कोई प्यार नहीं है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या बोला. तो हम लोग बोल रहे हैं, कंज्यूमर स्पेंड्स मनी ऑन द commodity, the consumer is left with lesser money. अभी क्योंकि कंज्यूमर ने पैसा स्पेंड कर दिया कमोडिटी के ऊपर, the consumer is left with lesser money. Let's stop. In this process, the consumer derives a higher MU from the money. As consumer spends more money on the commodity, the consumer is left with lesser money. In this process, the consumer derives a higher MU from the money.
क्योंकि उसका पैसा कम हो गया, कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन आएगा उस पैसा से। क्या यहां तक क्लियर है क्या? However, अगर अभी तक आपको एमयू का फुल फॉर्म नहीं पता तो आप पता नहीं क्या चीज के लिए क्लास कर रहे हैं मेरा। However, MU of a money has been assumed to be constant. ठीक है क्या गाइस? MU of a money remains constant. पहला assumption था यूटिलिटी मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है, सेकंड कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, रैशनल कंज्यूमर, MU of a money remains point F. Fixed income and prices. It is assumed that income of the consumer, it is assumed that, लिख रहे हैं आप लोग, it is assumed that income of the consumer and the price, it is assumed that the income of the consumer and the price of the commodity which the consumer wishes to purchase remains constant. Sorry. It is assumed that the income of the consumer and the price of the commodity which the consumer wishes to purchase remains constant. देखिए टोटल 6 assumptions मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर, क्या आप लोग यहां तक क्लियर हो गया? These are the assumptions of law of DMU. लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? अगर अभी भी तुम नहीं बोल पा रहे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? क्या होता है लॉ ऑफ डीएमयू? हिंदी में बोल दीजिए, दैट इज सो ग्रेट। क्या होता है लॉ ऑफ डीएमयू? As we keep on consuming more and more units of the commodity, जो satisfaction हम हर एक बार additional unit से derive करेगा वो बढ़ेगा नहीं, वो वापस बोलता है। लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं कि as we keep consuming more and more units of the commodity, जो satisfaction that we derive from each additional unit goes on, उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है तो टोटल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? शर्मा के। फिर मार्जिनल गिर के क्या बन जाएगा? जीरो। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी फॉल्स। कैन योर टोटल यूटिलिटी बी अ स्ट्रेट लाइन? टोटल यूटिलिटी को स्ट्रेट लाइन होने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी हैज टू बी कांस्टेंट, द स्लोप हैज टू बी कांस्टेंट। और ये पॉसिबल नहीं है। अगर हो गया तो बता दीजिएगा। अभी आप लिखना है यहाँ पे schedule. Schedule समझ में आता है? Tabular presentation. Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total utility. Marginal utility. पहला से मार्जिनल 20 आ रहा है तो टोटल यूटिलिटी भी कितना होगा? अब आप बोलो सेकेंड वाला से 20 आएगा या 20 से कम आएगा? बिकॉज ऑफ अ लॉ का नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। तो सेकेंड वाले आइसक्रीम से जो सेटिस्फैक्शन आ रहा है दैट इज 16, दोनों खाने से टोटल में कितना आ रहा है? तो देखो ना टोटल बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है? शर्मा के। तीसरा वाला खाया तो तीसरा वाला जो सेटिस्फैक्शन आ रहा है वो 16 से कम होगा। आई एम नॉट श्योर आप समझाएंगे। फोर्थ इज 4 से 4 50,
इसमें कुछ समझाने लायक है भी नहीं, क्लियर होना ही चाहिए, इम्प्लाइड है ये। तो लिखने का तो वेट करेगा ना लोग का। तुम फास्ट है ना, हम लोग तो स्लो है। वी लाइक इट स्लो। आराम आराम से जाना चाहिए जिंदगी में। हो गया, आगे बढ़े। Guys, this is the schedule. Anyone having any doubt with this? I'm moving forward. लिखने का है diagrammatic presentation. मोहतरमा जी थोड़ी देर बाद क्लास ही खत्म हो जाता, फिर आप फालतू में आते। थैंक यू, कहीं तो इज्जत दिलवाया, खुद तो देता नहीं है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। y x guys, this is for law of DMU. I am not drawing it for TU and MU, तो मैं दोनों नहीं बनाने वाला है। हमको लॉ ऑफ DMU में खाली MU का डायग्राम बनाने से मेरा काम हो जाता है टू एक्सप्लेन। दिस इज इट। ये किसका डायग्राम है बोलिए? MU। इधर में अपना होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द विच एक्सेस? y एक्सेस। x एक्सेस में हम लोग का क्या होगा? यूनिट्स। जैसे जैसे मेरा यूटिलिटी यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा सेटिस्फैक्शन कम होते जा रहा है। A B C D E। अब ये जो पॉइंट E है, अगर आप लोग ये बोल सकते तो हमको काफी अच्छा लगेगा। ये जो पॉइंट E है मेरा भाई लोग, इसमें अभी MU कितना है अगर आप लोग बोल सकते हैं तो? इट्स अ 0 MU which is called as the point of, सुनाई नहीं दिया गाइस? Point of satiety। ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या MU बोल सकते हैं अगर कोई बता सकता है तो? इट इज नेगेटिव MU। हो जाएगा तो बोलिएगा। डन गया? तो आप देखो लॉ ऑफ DMU मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने लॉ लिखा है, एजम्पशन लिखा है, स्केड्यूल बनाया है, फिर डायग्राम बनाया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लॉ ऑफ DMU याद हो गया आप लोग को? लॉ ऑफ DMU बोलते हैं कि एज यू कीप कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, आप जो सेटिस्फैक्शन डिराइव करोगे हर बार एक एडिशनल यूनिट से इट विल गो ऑन डिमिनिशिंग। अब कल का क्लास का एक क्वेश्चन अगर आप ये बोल सकते हो तो ब्रिलियंट। आई वांट टू मूव फॉरवर्ड आफ्टर दैट। प्लीज गलत मत बोलना भाई, कल 1 घंटा यही पढ़ाया है। व्हेन विल अ कंज्यूमर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम? What is willing to pay को हम लोग बोलेंगे MU। अगर हम लोग कमोडिटी X का बात करें हम लोग बोलेगा MU X is equal to the price of the commodity which is gonna be what? PX। तो MU X is equal to what? PX। नहीं समझा अभी भी? What the consumer is willing to pay is exactly equal to what he actually has to pay। So MU X is equal to PX। In that situation the consumer is said to be in equilibrium। पर आप इस डायग्राम को देखो, क्या इस डायग्राम में मैंने प्राइस बनाया है क्या? Have I drawn the price line क्या? तो ये इक्विलिब्रियम के बारे में है ही नहीं ये डायग्राम। ये डायग्राम किसके बारे में? लॉ ऑफ DMU। मैंने टोटल यूटिलिटी का डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि मेरे से उसने रिलेशनशिप नहीं पूछा, उसने मेरे से खाली क्या पूछा? लॉ।
Is this clear to everyone? अब इसके नीचे लिखने का है एक्सप्लेनेशन. क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप कपड़ा पूरा पहन के नेक्स्ट टाइम से. जैकेट या एक कंबल उस अलमारी में रख दो, आके ओढ़ लो, बेटर लगा. हमको गर्मी लगता है, हम नहीं पढ़ा पाते ऐसे. एक्सप्लेनेशन. हो गया? करें? ठीक है. As seen in the above diagram, as seen in the above diagram, as seen in the above diagram, the rectangles become smaller. Rectangles become smaller and smaller. अब डायग्राम दिख रहा है, अगर आपको अंधा नहीं है तो मैंने जो रेक्टेंगल्स बनाए हैं इस डायग्राम के अंदर वो छोटे होते जा रहे हैं जैसे जैसे कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स बढ़ रहा है. वही तो हम लिखने वाला है इंग्लिश में. As seen in the above diagram, the rectangle becomes smaller and smaller with the increase in consumption. With the increase in consumption. MU continues to fall. MU continues to fall and becomes what? अगर आप लोग बोल सकते हैं तो and becomes, गिरते गिरते पहले क्या बनेगा? Zero. And becomes zero dash. This is known as, your answer will help me guys, this is known as what guys? This is known as point of satiety. If we continue to consume, beyond this point, मतलब पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बाद भी अगर हम कंज्यूम करते हैं, डैश MU becomes what? अगर आप बता सकते. As seen in the above diagram, the rectangles become smaller and smaller with the increase in consumption. MU continues to fall and becomes zero. This is known as the point of satiety. If we continue to consume beyond this, sorry, मैंने एक extra लिख दिया. If we continue to consume beyond this point, MU becomes what guys? Negative. क्या आपको लॉ ऑफ डीएमयू पूरा क्लियर है क्या? हम आप लोग से वार्तालाप कर रहे हैं गाइस. सब लोग को क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अपना कॉपी में हेडिंग लिखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. गाइस एक सेकंड के लिए हम लोग रुक रहे हैं. ओके गाइस, अपना कॉपी में हेडिंग लिखिएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. अपना कॉपी में हेडिंग लिखिएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. Consumers equilibrium. Equilibrium means a state of, अगर आप लोग को पता है तो बोल सकते हैं. कल बोला यार इतना बार, 1 घंटा बोला. Equilibrium means a state of what guys?
or position of, so equilibrium means a state of rest or position of no change. A consumer is said to be in equilibrium. A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend, to change his level of consumption. When he does not intend to change his level of consumption. Does not intend to change his level of consumption. पॉइंट नंबर 1 कर लीजिए इसको. पॉइंट नंबर 2, consumer equilibrium refers to a situation. Consumer equilibrium refers to a situation when a consumer equilibrium refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income. Consumer equilibrium refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with what? Income, and has no tendency to change his way of existing expenditure. वैसे अगर मैं एक बनिया बुद्धि में बोलूं ना, तो मेरे लिए पता है इक्विलिब्रियम क्या है. मेरा पैसा कम है, ठीक है. कम पैसे में सबसे कम खर्चे में जो मेरे को सबसे ज्यादा मजा देगा ना, वो इक्विलिब्रियम है मेरे लिए. मतलब सबसे कम खर्चा करके when you derive the maximum level of satisfaction, then you are said to be in what? Equilibrium. जितना से कम रुपया में you derive the highest level of satisfaction, then the consumer is said to be in what? Equilibrium. अभी आपको समझ आया नहीं आया? देखो भाई, अगर इनकम नहीं है तो हम तो कंजम्पशन करते जाएगा. I'll keep deriving satisfaction, मैं उसका बात ही नहीं कर रहा हूं. मेरा अभी इनकम लिमिटेड है, तो मेरे को इस तरीके से अपने इनकम को स्पेंड करना है कि सबसे कम खर्चे में I derive the maximum satisfaction. इसको अपन बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. वापस बोलने का हो जाएगा गाइस. पॉइंट नंबर 3, point number 3, consumers equilibrium can be discussed under two situations. A, सिंगल कमोडिटी, मतलब कंज्यूमर अपना सारा का सारा रुपया एक ही कमोडिटी के ऊपर खर्चा कर रहा है. इज दिस क्लियर? It spends his entire income on a single commodity. दूसरा, टू कमोडिटी. जब अपना कंज्यूमर अपना सारा इनकम एक कमोडिटी पे नहीं, कितने कमोडिटी पे खर्चा कर रहा है? 2. Then it will be called as two commodity.
तो हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच दो केसेस में पढ़ा रहा है, एक सिंगल कमोडिटी और एक टू कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी मतलब मैंने अपना सारा इनकम एक ही कमोडिटी पे खर्चा किया। जब मैंने अपना सारा इनकम दो कमोडिटी पे खर्चा किया, इट इज कॉल्ड एज टू कमोडिटी। अभी आप क्लियर है तो आप बता दीजिए। श्योर क्या? अभी हम सिंगल कमोडिटी टू कमोडिटी दोनों डिराइव करके समझा रहेगा, नोट्स अपन कल लिखेंगे इसका। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप जितना नोट्स लिखा है एक बार पूरा गो थ्रू करिए। तो अभी रीड ऑल द पॉइंट्स। फिर जब हम रिवीजन करता है ना, तुम लोग एक का भी रिस्पॉन्स नहीं आता। रीड ऑल द पॉइंट्स राइट नाउ। जो मैं समझा रहा हूँ ना, अभी आप ढंग से सुनना। दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी लिखने का कुछ नहीं है कॉपी के अंदर, ठीक है? अपना कार्डिनल अप्रोच में लास्ट चीज बचा लिखने के लिए, which is single commodity and two commodities का इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स बेसिकली। we're done with the cardinal approach के सारे नोट्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? अभी आप सुन रहे हैं? लेट अस टेक अ यूनिट ऑफ x। मतलब मैंने अपना कमोडिटी को क्या माना है गाइस? x। और मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अभी तक तुमको ये याद हो जाना चाहिए कि MUX हम लोग क्या क्या लिखते हैं। आपको ये याद हो गया तो इट शैल बी ग्रेट। 20 16 10 4 0। ये जो MUX है, अगर मैं इसको बोलूं ये इन यूटिल्स, किसमें गाइस? यूटिल्स। अगर मैं ये बोलूं कि MU इन रुपी भी यही होगा, तो बताइए कब होगा? when मेरा 1 rupee is equal to, and this is gonna remain what? Constant. Do you agree? Tell यार। तो अभी क्या हुआ भाई लोग, मैंने अपना पूरा इनकम जितना भी मैं कमाता हूं, मैंने अपना पूरा का पूरा इनकम पता है किस में स्पेंड किया? एक्स पे। यही तो थॉट प्रोसेस है। जो भी मेरा इनकम है, मैंने अपना पूरा का पूरा इनकम स्पेंड किया, किस पे स्पेंड किया? एक्स। मेरा इनकम फिक्स है, उसके लिए मेरा 1 रुपी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 यूटिल। ये भी कांस्टेंट है। Guys, if you cannot understand what I'm teaching, तो बहुत दिक्कत है गाइस। वापस बोलते हैं मैंने क्या क्या बोला। मेरा इनकम क्या है गाइस? I want to hear it from you यार। मेरा इनकम क्या है? फिक्स्ड। मेरा इनकम फिक्स्ड है, उसके कारण मेरा जो 1 रुपया से सेटिस्फैक्शन आ रहा है, विच इज 1 यूटिल, ये भी क्या है? कांस्टेंट। क्या यहां तक समझ आ गया आपको? अब मैं एक रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम करूंगा कंटिन्यूअसली, तो उससे जो मेरा सेटिस्फैक्शन आएगा वो बढ़ेगा नहीं भाई, मेरा सेटिस्फैक्शन गिरेगा। उसके लिए देखिए मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है। फिर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में लेके गया, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल। ठीक है क्या? अगर मैं बोल दूं मेरा MU 0 पे टोटल सेटिस्फैक्शन इज द हाईएस्ट, एम आई राइट और रॉन्ग? MU 0 पे मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन इज द हाईएस्ट, एम आई राइट और रॉन्ग? एकदम सही है, पर ये इक्विलिब्रियम नहीं है। इज दिस क्लियर? अब मैं लिखने वाला हूं, लेट अस एज्यूम द प्राइस ऑफ एक्स टू बी ₹10। अब आप बताओ, मैं 1 खरीदूं, मैं 2 खरीदूं, 3 खरीदूं, 4 खरीदूं, 6 खरीदूं, 5 खरीदूं, हर बार प्राइस क्या रहेगा? बिकॉज प्राइस इज ऑल्सो एज्यूम टू बी। उसके लिए मैंने आज सारे assumptions पहले लिखवा दिया। तो आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हो एक रीजनेबल क्वांटिटी, तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है वो बढ़ेगा नहीं, वो गिरेगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी क्योंकि आपका इनकम फिक्स है, तो हर बार 1 रुपया से जो सेटिस्फैक्शन आएगा 1 यूटिल, दैट इज ऑल्सो गोना रिमेन व्हाट? कांस्टेंट, एंड योर प्राइस इज ऑल्सो व्हाट? कांस्टेंट। तो मैं ये बोल सकता हूं मेरा P ऑफ एक्स अभी आप बोलने का कि यहां तक क्लियर है या नहीं? अब आपको मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से सुनने का। मेरा पहला यूनिट देखने का ना गाइस, पहला यूनिट से मेरे को कितने का मजा आ रहा है? 20। मतलब मैं 20 रुपीज पे करने के लिए रेडी हूं फॉर माई फर्स्ट आइसक्रीम। फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स आई एम विलिंग टू पे कितना रुपया? 20, विच इज नथिंग बट MU इन रुपीज। पर मेरे से दुकानदार वाला भैया पता है कितना मांग रहा है? 10। तो मेरा रिमार्क्स पता है क्या होगा दुकानदार वाला भैया को? MUX is greater than PX। अभी तो ऐसे स्कूल में मत बोलना, टीचर बोल रहे ज्यादा तो चोमू है, ऐसे खराब है।
MUX is greater than what guys? PX. अभी आप समझा या नहीं समझा? पक्का? अभी तुम समझो, मैं जब सेकेंड यूनिट खाने जाऊंगा ना, तो मैंने आपको एक चीज समझाया था, जब आपके पास कोई चीज का यूनिट्स बढ़ते जाता है ना, आपको वो चीज अब उतना प्यारा नहीं लगता। आया ना? तो जब मैं सेकेंड आइसक्रीम खाऊंगा, मैंने एक खा चुका है मेरा भाई, और मैं कंटिन्यूअसली दूसरा खा रहा हूँ, तो जो दूसरा से सेटिस्फैक्शन आएगा वो पहला से कम आएगा। तो मैं बता दूसरा वाला के लिए कितना रुपया पे करने के लिए रेडी है? 16। दुकानदार फिर भी कितना मांग रहा है? 10। तो मैं बोलूंगा दुकानदार चोमू है, बिकॉज मेरा MUX इज स्टिल ग्रेटर देन PX। डू यू एग्री? टेल यू। तो अभी तुम खुद सोचो, तुम्हारा यूटिलिटी ज्यादा है, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन इज हायर देन व्हाट प्राइस यू आर पेइंग, तो क्या तुम यहाँ पे रुकेगा क्या? यू विल ट्राई टू बाय मोर। और तुम जब तीसरा आइसक्रीम खा रहे, तीसरा बैक टू बैक, तो तीसरा वाला से जो मजा आ रहा है वो दूसरा वाला से भी कम आएगा। इन दैट सिनेरियो, ओके, आई एम नॉट श्योर आप समझा या नहीं समझा। इस सिनेरियो में एक कंज्यूमर क्या चीज में होता है? अब कोई बोले गौतम भाई MU गिर क्यों रहा है? तो भाई तुम इतना देर से पढ़ के आ रहे हैं फिर 6 क्लास से, MU गिर क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। गौतम भाई MU इन रुपीस कैसे निकाल लिया आप? MU इन यूटिल से सेम, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू व्हाट? गौतम भाई आप ज्यादा खरीद रहे फिर भी आप प्राइस गिरा नहीं रहे, जबकि प्राइस तो गिरना चाहिए। नहीं मेरा भाई, क्योंकि लॉ का assumption है मेरा प्राइस इज गोना रिमेन व्हाट? कांस्टेंट, एंड आई एम गोना बी एट इक्विलिब्रियम। जब मैं जितना पे कर रहा हूं, मेरे को जितना पे करने का मन है उतना ही वो पे करने के लिए मांग रहे हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं मैं इससे ज्यादा खरीदना चाहूंगा, नहीं मैं इससे कम खरीदना चाहूंगा। दिस इज माई परफेक्ट पोजिशन। हियर द कंज्यूमर इज स्पोकन टू बी इन व्हाट? अब मैं कुछ बोल रहा हूं, आई वांट यू गाइस टू लिसन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब योर MUX आप जो रेडी हो देने के लिए वो ज्यादा है देन द प्राइस दैट यू नीड टू पे, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं हम लोग? तो पता है पहला यूनिट में आई एम एट अ सरप्लस ऑफ ₹10, सेकेंड यूनिट में आई एम अ सरप्लस ऑफ ₹6, 16 माइनस 10। अब समझा नहीं हम क्या किए? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। जब व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज मोर देन व्हाट यू एक्चुअली हैव टू पे, तो तुमको पता क्या लगता है? तुम फायदे में, और फायदे को हम लोग बोलते हैं सरप्लस। सो द कंज्यूमर इज इन व्हाट मेरा भाई लोग? सरप्लस। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंज्यूमर को लग रहा है ना वो फायदे में, तो वो ज्यादा दाम देने के लिए रेडी है। तो दिस कंज्यूमर सरप्लस इज अ कंसेप्ट दैट हेल्प्स अ प्रोड्यूसर in order to decide the price of the commodity. I hope you are able to understand. So consumer surplus plays a very very important role. It also helps the government to understand कि अभी तो consumer फायदा में, थोड़ा taxes और बढ़ाने का scope है। Government point of view से सोचिए अब, the consumer is in surplus, right? The consumer is willing to pay more than what he has to pay. तो अभी government पता है क्या बढ़ा देता है? Tax. अभी उसको पता है क्या लग रहा है? 96 तो सब पेट्रोल बढ़ा ही रहा है ना। एक काम करता है, 2 रुपया टैक्स बढ़ा देता है। Let us increase the petrol का प्राइस to be what? 98। अभी वो क्या सोचता है? अब एक रैशनल आदमी है, वो गवर्नमेंट क्या सोच रहा है? इंडिया में लोग थोड़ा ऐसे सोचता है, राउंड फिगर्स। तो 98 राउंड नहीं है ना, फिर 2 रुपए किधर चिल्लर ढूंढ लेगा आदमी, परेशान होगा। लेट अस मेक इट व्हाट? 100। अभी वो 100 का 101 जब करेगा, अगर लोगों ने रिएक्ट किया ना, तो बोलेगा ओ भाई लोगों का इमोशन सेंटीमेंट हर्ट हो गया, मतलब अब कंज्यूमर फायदे में नहीं है, लेट्स कम बैक। That's what they do basically. It helps you in setting the taxes as well. Consumer surplus. मेरे को लगता है ना इक्विलिब्रियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर सरप्लस। अगर मेरा कंज्यूमर सरप्लस पे है ना, आई कैन एक्सप्लॉइट माय कंज्यूमर इन सिंपल सरल भाषा। खराब भाषा बोला है, लेकिन मैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकता हूं अगर मेरा कंज्यूमर क्या चीज में है? सरप्लस। और सरप्लस में तब होगा जब वो ज्यादा रुपया देने के लिए रेडी है जितना उससे हम एक्चुअली चार्ज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिए। तो जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है ना, इसको क्या बोला मैंने? एक्स्ट्रा यूटिलिटी। इस एक्स्ट्रा यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, एक्स्ट्रा जो मजा आ रहा है उसको पहले 2 यूनिट्स। क्या यहां तक क्लियर है क्या? क्योंकि MUX इज ग्रेटर देन PX, द कंज्यूमर इज इन सरप्लस, तो द कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन। अगर आप क्लियर है तो बता दीजिए। और जैसे जैसे कंज्यूमर अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा, सच दैट मेरा MUX इज इक्वल टू PX।
आई होप इट मेक सेंस टू एवरीवन गाइस। अब इधर में पता मेरा क्या हो गया, MUX इज लेस देन PX। तो इधर में अभी, अरे प्रोड्यूसर छोड़ो, प्रोड्यूसर का चैप्टर ही नहीं है। कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन। क्या बोला, समझ में आया? प्रोड्यूसर के लिए ना कॉस्ट चाहिए होता है। प्रोड्यूसर तब मजा लेता है जब उसको प्रॉफिट मिलता है। प्रोड्यूसर का सरप्लस इज प्रॉफिट। यहाँ पे प्रोड्यूसर का बात ही नहीं हो सकता, तो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है पूरा का पूरा। तो द कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन व्हेन योर MUX इज लेस देन PX। अब आप कंजम्पशन कम कर दे तो वो चीज आपके पास कम अवेलेबल है, तो आपको वो चीज वापस से पसंद आने लग गया है क्योंकि तुम कम खा रहे हो उस चीज को, तुम्हारा MU वापस से बढ़ेगा, सच दैट योर MUX बिकम्स अगेन इक्वल टू व्हाट, PX। अगर आपको समझ में आया तो आप बता दीजिए। तो एक बार देखिएगा ना, ये मेरा क्या चीज का लाइन, अगर आप बता सकते हैं तो MUX। ये मैंने एक लाइन बनाया है विच इज कांस्टेंट लाइन। तो पता ये क्या चीज का लाइन है, प्राइस। यहाँ पे जहां पे दोनों का मिलाप हो रहा है ना, दिस इज द पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर इज सपोज टू बी इन व्हाट गाइस, ठीक है क्या? इस पॉइंट पे देखो भाई लोग, प्राइस यहाँ है, तुम्हारा यूटिलिटी का ग्राफ ऊपर है, मतलब तुम अभी बताइए इस एरिया में क्या चीज पे, कंज्यूमर सरप्लस। तो जो ट्राइंगल टाइप है ना, ये जो ट्राइंगल टाइप है ना, देखो ना, फील करो थोड़ा सा, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। तो अब आप बता दीजिए, व्हेन इज अ कंज्यूमर सपोज टू बी इन इक्विलिब्रियम, जब वो अपना पूरा इनकम एक ही कमोडिटी पे स्पेंड कर रहा है। When MUX is equal to, और ये होना नहीं है तो दो केस होना है, इधर MUX is greater than PX और MUX is less than। अब वो पूछेगा अगर MUX is greater than PX तो क्या होगा, आप बोलेगा अगर MUX PX ज्यादा तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, आप ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर MUX is less than PX तो आपका कंजम्पशन गिरेगा। I hope it makes sense to everyone. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। Look satisfied? And when your MUX is greater than PX, in that case you are at surplus. That is called as consumer surplus. समझ आया? पर अभी कितना कमोडिटी लिया मैंने, एक, पर एक से ज्यादा कोई तो केस है, when you're spending your entire income on more than one commodity, it's either two or more than two। क्या आता क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।